Hello students, so today we will be going to start the topic which is immunity. So what is immunity? Immunity is the property of your body to fight against disease causing organisms. Okay, just like you have soldiers which protects the border of your country, they does not allow the terrorists to get inside your country, or in case if the terrorist enters inside your country, so they will try to destroy those terrorists. In the same way, you also have system present in your body which fights against these disease causing organisms. So this system is known as your immunity. Okay, now this immunity can be present by birth. So the immunity which is present by birth, which is inherent, is known as innate immunity. The immunity which is acquired later on by the exposure to the pathogens or by the experiences over the period of time is known as your acquired immunity. Okay, now we will be going to study both innate and acquired immunity in details one by one. So in the innate immunity, we will be going to study 4 barriers: physical barrier, physiological barrier, cellular barrier, and cytokines. In the acquired immunity, we will study about B lymphocyte, which causes humoral immunity. Then we will study about your T lymphocytes, which gives cell-mediated immunity, which is responsible for your graft rejection. Now we will be going to study all these details one by one. So the first will be your innate immunity, and first barrier in innate immunity is your physical barrier. So innate immunity. Now in the innate immunity, the first barrier is your physical barrier. Okay, now in the physical barrier, the first barrier will be your skin. So skin is your first line of defense. कोई भी पैथोजन होता है सबसे पहले कहाँ से आएगा? आपकी स्किन को ओवरथ्रो करता है. So your skin is a physical barrier. Now the second barrier will be your mucous membrane. आप सबको पता है म्यूकस की कोटिंग होती है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर. तो ये म्यूकस का जो कोटिंग है ये भी एक्ट करता है एज अ फिजिकल बैरियर टू दी पैथोजेंस. सो द म्यूकस कोटिंग इन योर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, एज वेल एज योर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये क्या होता है? एज अ फिजिकल बैरियर एक्ट करता है. नाउ द सेकेंड बैरियर विल बी योर फिजियोलॉजिकल बैरियर. सो फिजियोलॉजिकल बैरियर में हमारे पास में क्या आ जाएगा? जैसे कि हमारे माउथ है, माउथ के अंदर जो सलाइवा है, इट विल बी गोइंग टू काउंट इनटू योर फिजियोलॉजिकल बैरियर. सो योर माउथ हैव सलाइवा. So that saliva acts as a physiological barrier. Then your tears also acts as physiological barrier. It has enzyme lysozyme. So these enzyme destroy the pathogens. तो आपका जो tears हैं, saliva है, they act as the physiological barrier to these pathogens. Now the third kind of barrier will be your cellular barrier. So as the name suggests, certain cells acts as the barrier to the pathogens. Now what are these cells? So these cells can be natural neutrophils, they can be macrophages, monocytes, okay. So these are the cells which acts as the barrier. They perform the process which is known as phagocytosis, and by this process of phagocytosis they destroy the microorganism. Now the fourth kind of barrier will be the barrier of chemicals, which is known as your cytokine barrier. So what are cytokines? Cytokines are the certain chemicals which are secreted in your body. So cytokine barrier is there, fourth one. Okay, तो cytokines क्या होते हैं? These are the chemical substances which are produced inside the body.
सो एग्जाम्पल क्या होगा हमारे पास में, दिस इज़ अ सेल विच इज़ इन्फेक्टेड बाय अ वायरस। तो ये जो वायरस इन्फेक्टेड सेल होती है, इट सिक्रीट योर इंटरफेरॉन्स, ठीक है। और ये जो सेल है जो कि इंटरफेरॉन सिक्रीट करती है, ये प्रिवेंट करता है नेबरिंग सेल को, ठीक है। इससे जो नेबरिंग सेल होगी वो क्या होगी, फिर फर्दर उस वायरस के इन्फेक्शन को स्प्रेड नहीं होने देती है। सो दिस साइटोकाइन इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ इनेट immunity. Now the next kind of immunity will be the acquired immunity. So as we know, acquired immunity is the one जो कि हम क्या करते हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बाय बर्थ हमें इनहेरिट नहीं होती है, एक्सपीरियंस के थ्रू डेवलप होती है, ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, वी हैव बोन मैरो, ठीक है। बोन मैरो के अंदर 2 टाइप की लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस होती है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, ठीक है। अब ये यहाँ पे बी का मतलब क्या है, बी रिफर्स टू बोन मैरो, यहाँ पे टी का मतलब क्या है, थाइमस, ठीक है। अभी जो बी लिम्फोसाइट होती है, इसका तो मैच्योरेशन भी बोन मैरो के अंदर होता है, बट टी लिम्फोसाइट कहाँ पे मैच्योर होती है, ये जाएगी थाइमस के अंदर। 11th क्लास में पढ़ा होगा, थाइमस ग्लैंड यहाँ पर प्रेजेंट होती है, सो इट मैच्योर इन थाइमस, ये जाएंगी थाइमस के अंदर, इनका मैच्योरेशन होगा थाइमस के अंदर। अब ये बी और टी लिम्फोसाइट रिस्पॉन्सिबल होती है इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए, ठीक है। ये जो बी लिम्फोसाइट होगी और टी लिम्फोसाइट होगी, ये फिर किस में मैच्योर होती है, इफेक्टर सेल के अंदर मैच्योर होती है। हमारे पास क्या होता है, ये हमारी है बी लिम्फोसाइट। जब ये बी लिम्फोसाइट का इनकाउंटर होता है एंटीजन के साथ में, तो ये बी लिम्फोसाइट डिफ्रेंशिएट होगी 2 सेल के अंदर। पहला तो होगा मेमोरी सेल एंड दूसरी सेल होती है प्लाज्मा सेल। नाउ दिस प्लाज्मा सेल विल सिक्रीट योर एंटीबॉडीज़। अभी ये जो एंटीबॉडी टेस्ट आप लोग देख रहे हैं कोविड के अंदर, तो ये एंटीबॉडीज़ कहाँ से प्रोड्यूस होगी, ये जो प्लाज्मा सेल है, जो बी लिम्फोसाइट का टाइप है, बी लिम्फोसाइट डिफ्रेंशिएट होगा प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल के अंदर। प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी सिक्रीट करेगी हमारी बॉडी के अंदर। मेमोरी सेल क्या करेगी, इट सेव्स द मेमोरी ऑफ एनकाउंटर। अब एनकाउंटर की मेमोरी सेव करने से क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर 2 टाइप के रिस्पॉन्स होते हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स। जब आपको पहली बार किसी चीज़ का इन्फेक्शन होता है, उसको हम कहते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। जब आप दूसरी बार उस चीज़ से इन्फेक्ट होंगे, दैट विल बी सेकेंडरी रिस्पॉन्स। जैसे कि क्या कहते हैं हम लोग कि अगर चिकन पॉक्स एक बार हो गया है तो दूसरी बार नहीं होगा, या कोविड के लिए वैक्सीन लगवा रहे हैं, जिनको एक बार कोविड हो गया है वो इम्यून हो गए हैं। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि आपकी बॉडी इसकी मेमोरी सेव करके रख रही है, मेमोरी सेल्स बन रही है, तो उसको जल्दी से पहचान लेगी कि ये तो कोविड वायरस ही है जिसका इन्फेक्शन हुआ था, और जल्दी से उसके अगेंस्ट काम करने लगेगी, ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर 2 टाइप के रिस्पॉन्सेज हैं, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, जब हमारी बॉडी फर्स्ट टाइम किसी पैथोजन को इनकाउंटर करती है। सो फर्स्ट टाइम जब आपको किसी पैथोजन को इनकाउंटर करेंगे, दैट विल बी प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। जब सब्सिक्वेंट इनकाउंटर होगा, दैट विल बी योर सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में ग्राफ होता है। ये क्या होता है, जब प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होगा तो हमारी बॉडी का ये लैग टाइम होता है, जिस टाइम तक हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एक्शन शो नहीं करेगी, प्रिपेयर करने के अंदर टाइम लगाएगी उसको आइडेंटिफाई करने के अंदर। तो ये जो लैग पीरियड होता है ये ज़्यादा होता है, फिर आपकी बॉडी इसके अगेंस्ट एक्शन शो करेगी। तो ये आई हमारे पास में एंटीबॉडीज़, ठीक है। ये तो आया हमारे पास में जब हमको प्राइमरी पहली बार इन्फेक्शन हुआ। अब दूसरी बार सपोज करो आपको यहाँ पे वापस इन्फेक्शन हो गया, तो आपकी बॉडी इमीडिएटली रिस्पॉन्स शो करेगी और एंटीबॉडी का अमाउंट भी ज़्यादा बनेगा। लैग टाइम भी कम होगा, यहाँ पे लेसर लैग टाइम, कि आपकी बॉडी क्विकली उसके अगेंस्ट एक्शन शो करेगी,
एज वेल एज जो टाइटर होगा एंटीबॉडी का, वो भी सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर क्या होगा, ज़्यादा होगा, ज़्यादा अमाउंट के अंदर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होगी, क्विक रिस्पॉन्स होगा, लैग टाइम कम होगा, ज़्यादा अमाउंट के अंदर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होगी। तो ये हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है। जो आपकी वैक्सीनेशन है वो इसी प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है। किस प्रिंसिपल पे? मेमोरी ऑफ योर इम्यून रिस्पॉन्स, कि आपने वैक्सीन डाली तो आपके प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स हुआ। अब क्या हो गई, मेमोरी सेल फॉर्म हो गई आपकी बॉडी के अंदर। अब जब आपको रियल टाइम के अंदर इसका इन्फेक्शन हुआ कोविड का, तो आपकी बॉडी क्विकली इसको आइडेंटिफाई करेगी, इसके अगेंस्ट रिएक्ट करेगी, उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। तो ये जो मेमोरी है इम्यून रिस्पॉन्स का, ये बेसिक प्रिंसिपल होता है हमारे वैक्सीनेशन प्रोसेस का। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारी जो बी लिम्फोसाइट है, ये बी लिम्फोसाइट क्या प्रोड्यूस कर रही थी? इट वॉज प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़। ये एंटीबॉडीज़ कहाँ प्रेजेंट है? ब्लड के अंदर प्रेजेंट है। तो इस टाइप की इम्यूनिटी को हम कहते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी, क्योंकि एंटीबॉडीज़ कहाँ है? ब्लड के अंदर है। सच काइंड ऑफ इम्यूनिटी विल बी नोन एज ह्यूमरल इम्यूनिटी। अब हमारी जो टी लिम्फोसाइट होती है, ये टी लिम्फोसाइट क्या होती है? ये टी लिम्फोसाइट दो के अंदर डिफ्रेंशिएट होगी, टी सी सेल, टी हेल्पर सेल के अंदर डिफ्रेंशिएट होती है। ठीक है, अब ये जिस टाइप की इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसको हम कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है जो भी ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है। अगर कोई पर्सन है, इफ़ इट इज़ अ डोनर, ठीक है, डोनर से आपको क्या करना है? लिवर ट्रांसप्लांट करना है रेसिपिएंट को। ठीक है, आपने सारा मैचिंग वगैरह भी कर लिया है, बट अगर रेसिपिएंट क्या करता है? इसको ग्राफ्ट को रिजेक्ट कर देता है। उस रिजेक्शन के लिए जो इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल है, हमारी बॉडी का जो सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है, दैट विल बी अ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और टी लिम्फोसाइट। अगर आपसे ये पूछता है विच सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन, सो यू विल टेल देम टी लिम्फोसाइट। अगर पूछता है विच सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल, सो यू विल टेल देम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन। ओके, दीज आर द टू कंसेप्ट्स, ह्यूमरल इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी को दो में हमने डिवाइड करा है। देन हमारे पास में आता है कि आखिर एंटीबॉडी का हमारे पास में स्ट्रक्चर क्या होता है। सो आपकी जो एंटीबॉडीज़ होती है, इसका स्ट्रक्चर होता है H2L2। ठीक है, H2L2 क्या है हमारे पास में? इस तरीके का वाई शेप्ड स्ट्रक्चर होता है एंटीबॉडीज़ का, जिसमें से हमारे पास में क्या होती है? यू आर हैविंग टू हेवी चेन्स, H1, H2, L1, L2। ठीक है, हमारे पास में क्या होती है? दो हेवी चेन्स हैं एंड टू लाइट चेन्स होती हैं इसके अंदर। हेवी और लाइट हमने किस बेसिस पे कहा है? इनके मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे कहा है। ठीक है, लाइट वाली का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 25 किलो डाल्टन होता है। एंड हेवी वाली का मॉलिक्यूलर वेट कितना है हमारे पास में? इट्स 50 किलो डाल्टन। ठीक है, इस बेसिस पे हमने इनको डिवाइड करा है और एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ठीक है, अब एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में क्या होते हैं? डाइसल्फाइड ब्रिजेस होते हैं। हेवी एंड लाइट चेन किसके थ्रू कनेक्टेड है? डाइसल्फाइड ब्रिजेस के थ्रू। एंड यहाँ पे विद इन इसके अंदर भी हमारे पास में डाइसल्फाइड ब्रिजेस होते हैं। तो अगर आपसे पूछता है व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन दी एंटीबॉडीज, सो यू विल सेलेक्ट डाइसल्फाइड ब्रिजेस। डाइसल्फाइड ब्रिजेस प्रेजेंट होते हैं एंटीबॉडीज के अंदर। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा है इस टॉपिक के अंदर? एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर हमने देखा कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हमने डिवाइड करा है ह्यूमरल इम्यूनिटी के अंदर एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर। सो इट इज डिवाइडेड इनटू सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी इज बिकॉज ऑफ योर बी सेल produce antibodies which are present in the blood. Cell mediated immunity is because of T cell. It is responsible for graft rejection. Then we started about the structure of the antibodies. That structure is H2L2 chain. Two heavy chains, two light chains are there in the antibodies. ठीक है, देन हमने और क्या पढ़ा था? दैट हमारा वैक्सीनेशन प्रिंसिपल का बेसिस क्या होता है हमारे पास में? मेमोरी ऑफ योर इम्यून सिस्टम। ये हमारा प्रिंसिपल है।
वैक्सीनेशन प्रोसेस का, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है, इन्नेट इम्यूनिटी के हमने क्या क्या टाइप पढ़े, इन्नेट के हमने टाइप पढ़े फिजिकल में हमने पढ़ा था स्किन वॉज द बैरियर एंड हमने पढ़ा म्यूकस। देन हमने पढ़ा फिजियोलॉजिकल में हमने क्या पढ़ा, हाँ फिजियोलॉजिकल के अंदर हमने पढ़ा सलाइवा एंड टीयर्स। देन हमने पढ़ा सेल्यूलर के अंदर क्या था, मोनोसाइट, मैक्रोफाजेस, न्यूट्रोफिल्स। देन हमने लास्ट पढ़ा था साइटोकाइन के अंदर हमने एग्जाम्पल क्या पढ़ा था, हमने साइटोकाइन के अंदर एग्जाम्पल पढ़ा इंटरफेरॉन का, ठीक है। रेस्ट द टॉपिक्स विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। प्लीज do subscribe to the channel and leave your comments in the comment section. Thank you.